ایڈمنسٹریٹر عقیل تعظیم نقوی نے جمشید ٹاؤن کے ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے فرائض سنبھالتے ہی بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی مزار پر حاضری دینے آئے اور مزار قائد پر پھول رکھے، اور اس موقع پر ٹاؤن کے افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے، جبکہ اس موقع پر مزار قائد پر سلامی کے روایتی مناظر بھی دیکھنے میں آئے۔ عقیل تعظیم نقوی نے مزار قائد کے ساتھ ہی عجائب گھر کا بھی دورہ کیا۔ مزار قائد پر اہلیہ نے جمشید ٹاؤن کو تمام تر بلدیاتی سہولتوں کی فراہمی کا عہد کر کے صفائی ستھرائی کے کاموں سے باقاعدہ ایڈمنسٹریٹر عقیل تعظیم نقوی نے کاموں کا آغاز کیا اور گلی محلوں کے ساتھ ساتھ شاہراہوں پر بھی صفائی ستھرائی کے کاموں کو یقینی بنانے کا عمل شروع کیا۔ آج ہم تمام افسران کے ساتھ مزار قائد پہ حاضری دی اور ہم نے عہد کیا اپنے تمام افسران کے ساتھ کہ ہم انتہائی ایمانداری اور محنت سے کام کریں گے۔ اور ہمارا کراچی پروگرام میں بھی اپنے فرائض احسن طریقے سے انجام دیتے ہوئے شہر قائد کی سب سے بڑی اور خوبصورت پھولوں کی نمائش کا بھی اہتمام کیا، جہاں پھول جیسے لوگوں نے اپنی شرکت کو بھی یقینی بنایا۔ وہیں صوبائی وزیر رضا ہارون، رکن قومی اسمبلی رشید گوڈیل، سابق ٹاؤن ناظم جاوید احمد نے بھی ایڈمنسٹریٹر جمشید ٹاؤن کی کاوشوں کو سراہا۔ وہیں لوگوں نے اس اقدام کو قابل تعریف قرار دیا۔ فلاورز ہیں وہ اچھے لگے، فلاورز کی بہت اچھی کلیکشن ہے، اچھی ہے، اس طرح کی ہونی چاہیے۔ پھولوں کی نمائش میں آنے کے لیے مزہ آتا ہے۔ پہلی دفعہ کراچی میں اس طرح کا کوئی فیسٹیول دیکھا ہے میں نے، بہت اچھا لگا مجھے یہاں، بہت اچھا، سب اچھا لگا، گلابی بہت اچھا۔ وہیں مزار قائد پر پولیو مہم کا بھی افتتاح سابقہ نائب ناظمہ نسرین جلیل نے کیا تھا۔ اس موقع پر معصوم بچوں نے خوبصورت پرفارمنس کا بھی کچھ یوں مظاہرہ کیا تھا۔ جبکہ ہمارا کراچی کی اختتامی تقریب میں صوبائی وزیر رضا ہارون نے جہاں شرکت کی تھی، وہیں دیگر اراکین اسمبلی نے بھی اپنی شرکت کو یقینی بنایا تھا۔ وہیں خوبصورت آتش بازی کا جہاں مظاہرہ کیا گیا تھا، وہیں معززین شہر نے بھی اپنی شرکت کو یقینی بنایا تھا۔ جبکہ حق پرست رکن قومی اسمبلی وسیم اختر نے جمشید ٹاؤن میں جہاں اسپرے مہم کا باقاعدہ افتتاح کیا تھا، وہیں بارشوں سے پہلے برساتی نالوں کی صفائی ستھرائی کے کاموں پر بھی ایڈمنسٹریٹر عقیل تعظیم نقوی جہاں مسلسل توجہ دیے ہوئے تھے، وہیں رکن قومی اسمبلی وسیم اختر نے بھی اپنی موجودگی کو یقینی بنایا تھا تاکہ اپنے حلقے کے لوگوں کو بارشوں میں صاف ستھرا ماحول فراہم کیا جا سکے۔ جبکہ جرائم کے خاتمے کے لیے BPCHS بلاک 6 میں پولیس چوکی کی تعمیر کو جہاں ایڈمنسٹریٹر عقیل تعظیم نقوی نے یقینی بنایا تھا، وہیں صوبائی وزیر رضا ہارون نے رکن قومی اسمبلی اقبال محمد علی خان اور معززین شہر کے ہمراہ اس کا باقاعدہ افتتاح کیا تھا۔ وہیں ٹاؤن کے دستیاب فنڈ سے اپنی 2 جدید اسپرے مشینیں خرید کر امام بارگاہوں، مندر، چرچوں، دارالسکون، مساجد اور گورنر ہاؤس میں بھی اسپرے مہم کو یقینی بنایا۔ اور ان تمام کاموں کی نگرانی کے لیے ٹاؤن آفس میں جہاں اجلاس کو یقینی بناتے ہیں، وہیں تمام افسران خود کو احتساب کے لیے بھی پیش کرتے تھے۔ یہ ایڈمنسٹریٹر عقیل تعظیم نقوی کا یقیناً ایک ایسا اقدام قرار دیا جا سکتا ہے۔ کر چکا ہوں یا مجھے کیا کرنا چاہیے یا میں نے اب تک کیا کیا ہے، مجھے آج وہ بتانا ہے آپ سب کو۔ مجھے سب سے زیادہ فکر صرف یہ تھی کہ کس طرح ملازمین کی تنخواہ میں ٹائم پہ کر دوں۔ وہ تنخواہ جو 20 تاریخ کے بعد ہو رہی تھی، کبھی اس سے بھی لیٹ ہو رہی تھی۔ سب سے پہلا جو کام میں نے کیا، جو اجتماعی فائدہ جس میں سب ہوا ہے، جس میں مجھے بھی ہوا، آپ سب کو بھی ہوا، آپ سب کے اسٹاف کو بھی ہوا، وہ تنخواہ کا تھا جو میں نے تنخواہ پوری کر دی۔ اب 1 تاریخ کو تنخواہ ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اس 1 تاریخ کو بھی تنخواہ ہو جائے گی اگر TO فائنانس صاحب نے چیک بنا کے مجھ سے سائن کرا کے منڈے کو دے دی۔ بارشوں میں بھی ایڈمنسٹریٹر عقیل تعظیم نقوی رکن قومی اسمبلی رشید گوڈیل، سندھ اسمبلی مزمل قریشی کے ہمراہ سڑکوں پر موجود رہتے تھے تاکہ بارشوں کے پانی کی نکاسی کو فوری طور پر یقینی بنایا جا سکے اور ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھ کر لوگوں کو تمام تر سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ جبکہ دادا بھائی ٹاؤن میں ہونے والے ترقیاتی کاموں کے تحت رکن قومی اسمبلی اقبال محمد علی اور رکن سندھ اسمبلی ندیم مقبول نے کیا۔
जिस पर इलाके के लोगों को सहूलतें मैसर आई, जहाँ पानी, सेवरेज और सड़कों की तामीर जैसे देरीना मसले को हल किया गया। जबकि शबरात के मौके पर भी एडमिनिस्ट्रेटर अकील ताजिम नकवी पीछे नहीं रहे और कब्रिस्तानों में आने वाले ज़ायरीन को सहूलतों की फराहमी के लिए खुद तमाम तर कामों का मुआयना करते रहे। कब्रों के आसपास सफाई, झाड़ियों की कटाई हो या स्ट्रीट लाइटों की फराहमी और स्प्रे मुहिम, यहाँ भी टाउन अफसरान शाहिद अशरफ चौधरी, अमीन और अमीर मुर्तजा के हमरा मौजूद रहे और तमाम कामों की खुद निगरानी करते दिखाई दिए। जबकि रमजान मुबारक में भी जहां ट्रैफिक कंट्रोल करते रहे ताकि रोजादार घरों पर इफ्तार कर सके, वहीं खुसूसी कैंपों की मदद से मुसाफिरों में इफ्तारी की तकसीम को भी यकीनी बनाते दिखाई देते थे। जबकि लोगों को सेहतमंद माहौल की फराहमी के लिए बनाए गए गुलाम हुसैन चिल्ड्रन पार्क का इफ्तिताह भी रुकन कौमी असम्बली वसीम अख्तर के हाथों करवाया। जबकि मुर्तजा फैमिली पार्क की तामीर के बाद इसकी हिफाजत के लिए एक सादा सी तकरीब में कमेटी का ऐलान किया गया, जिसमें सूबाई वजीर रजा हारून, रुकन कौमी असम्बली वसीम अख्तर ने मामूल के मुताबिक अपनी खुसूसी दिलचस्पी का मुजाहरा करते भी दिखाई दिए। जबकि सलीम अनवर शहीद पार्क को भी मुकम्मल करके एडमिनिस्ट्रेटर अकील ताजिम नकवी ने सूबाई वजीर रऊफ सिद्दीकी के हाथों इसका बाकायदा इफ्तिताह करवाया। जबकि आगा खान फैमिली पार्क की तामीर को भी एडमिनिस्ट्रेटर अकील ताजिम नकवी ने मुकम्मल करके इलाके के लोगों को खूबसूरत पार्क का जहां तोहफा दिया, इसका भी बाकायदा इफ्तिताह रुकन कौमी असम्बली रशीद गोडियल ने किया। जबकि लाल शाहबाज कलंदर रोड महमूदाबाद आवाम का एक देरीना मुतालबा था, इसकी तामीर का संग बुनियाद रुकन कौमी असम्बली वसीम अख्तर ने रखा। जबकि जमशेद टाउन की एक और अहम सड़क खुशहाल खान खटक आजम बस्ती कॉलोनी का इफ्तिताह सूबाई वजीर रऊफ सिद्दीकी ने करके इलाके का एक देरीना मसला हल किया। जबकि ईद उल अज़हा पर जमशेद टाउन की रवायत बरकरार रखते हुए कंप्यूटराइज सिस्टम नाफिज करते हुए खुसूसी सेल कायम किया गया, जिसका रुकन कौमी असम्बली रशीद गोडियल, रुकन सिंध असम्बली मुजम्मिल कुरैशी ने भी मुआयना किया। वहीं आलाइशों को बर वक्त उठाने के कामों का जायजा लेते रहे। वहीं चूने के छिड़काव और स्प्रे मुहिम को भी वक्फे वक्फे से ईद उल अज़हा के तीनों दिनों में यकीनी बनाया जाता रहा। वहीं एडमिनिस्ट्रेटर कराची लाला फजलुर रहमान ने भी डंपिंग ग्राउंड का मुआयना करके एडमिनिस्ट्रेटर अकील ताजिम नकवी और टाउन अफसरान की कारकर्दगी पर उनको शाबाश दी थी। जबकि मुहर्रम उल हराम के हवाले से उलमा इकराम का इजलास के इनेकाद को भी एडमिनिस्ट्रेटर अकील ताजिम नकवी ने टाउन ऑफिस में यकीनी बनाया, जिसकी सदारत रुकन कौमी असम्बली वसीम अख्तर ने की। और इजलास का मकसद तमाम तर मकातिब फिक्र के उलमा इकराम को एक जगह जमा करके मजहबी हम आहंगी को फरोग देना था। जबकि नश्तर पार्क में खुसूसी तौर पर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी बनाया गया, जिसका सूबाई वजीर रजा हारून, सूबाई वजीर अब्दुल हसीब, मुत्तहिदा कौमी उलमा कमेटी के रुकन जावेद अहमद, सेनेटर अब्बास कमेली, रुकन सिंध असम्बली नदीम मकबूल ने जहां मुआयना किया था, वहीं एडमिनिस्ट्रेटर लांडी टाउन नुमान अरशद, एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी टाउन मोहम्मद समीर खान और एडमिनिस्ट्रेटर शाह फैसल टाउन कमाल मुस्तफ़ा ने भी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का बाकायदा दौरा किया था और अपनी गहरी दिलचस्पी का इजहार भी करते हुए दिखाई दिए थे। कि रज़ा हारून भाई की भी हिदायत थी कि जाके इस सिस्टम को देखें और कोशिश करें कि अपने टाउनों में भी अगर वसाइल इजाज़त देते हैं तो इसको इम्प्लीमेंट करें। तो माशाल्लाह ये तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक सिस्टम इन्होंने यहाँ लगाया हुआ है। पूरी फिजिबिलिटी इन्होंने हमें अपनी बताई है, ये बहुत अच्छा इकदाम है और ये बिल्कुल हर टाउन में होना चाहिए। इस तरह की हमने भी एक फैसिलिटी बनाई है ताकि वो शाह फैसल टाउन भी कनेक्ट हो जाए सिटी से और ये सिलसिला भी कनेक्ट हो जाए, ताकि जो जुलूस है या जो जिस तरह के इवेंट्स होते हैं वो कंटिन्यूस और इसमें जो शरारत करने वाले लोग हैं वो आइडेंटिफाई हो सकें। वहीं सूबाई वजीर रजा हारून ने इसका बाकायदा इफ्तिताह करके TPO आमिर फारूकी के हवाले किया था, जहां से मुहर्रम उल हराम के दौरान मजालिस के साथ साथ नश्तर पार्क से निकलने वाले जुलूसों को सिक्योरिटी फराम की गई। और एडमिनिस्ट्रेटर अकील ताजिम नकवी ने मुत्तहिदा कौमी के रहनुमाओं के हमरा जहां जुलूसों की क़यादत की, वहीं अज़ादारान हुसैन में न्याज भी तकसीम करते रहे। जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर फैसल रजा आब्दी ने भी जमशेद टाउन के कैंप में पहुंचकर फराम की गई बल्दियाती सहूलतों पर एडमिनिस्ट्रेटर अकील ताजिम नकवी और टाउन अफसरान को शाबाश दी थी। जबकि मुहर्रम उल हराम के फौरी बाद क्रिसमस पर भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए टाउन ऑफिस में इजलास करके एडमिनिस्ट्रेटर अकील ताजिम नकवी ने गिरजा घरों को बल्दियाती सहूलतों की फौरी फराहमी के हवाले से हिकमत अमली तय की। वहीं चर्चों का दौरा करके सफाई सुथराई के कामों का जहां जायजा लेते थे, वहीं रुकन सिंध असम्बली मुजम्मिल कुरैशी ने भी टाउन ऑफिसर शाहिद अशरफ चौधरी के हमरा गिरजा घरों में तमाम तर बल्दियाती सहूलतों की फराहमी का जायजा लिया और स्प्रे मुहिम को भी यकीनी बनाने जैसे कामों का खुद जायजा लेते रहे। जबकि मुहर्रम उल हराम में अज़ादारान हुसैन को सहूलतों की फराहमी के साथ साथ अपनी रिहाइश गाह पर भी एडमिनिस्ट्रेटर अकील ताजिम नकवी ने मजलिस का एहतमाम किया था। मजलिस में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सफारी पार्क रजा अब्बास रिजवी, एडमिनिस्ट्रेटर सदर टाउन मुख्तार हुसैन, एडमिनिस्ट्रेटर लांडी टाउन नुमान अरशद, एडमिनिस्ट्रेटर नार्थ नाज़मर टाउन फारूक मायूस जैदी, लांडी टाउन के इरशाद आराई, जमशेद टाउन के टाउन ऑफिसर शाहिद अशरफ चौधरी, गुलबर्ग टाउन के महकमा बागात के अफसरान ने भी अपनी शिरकत को यकीनी बनाया था।
एडमिनिस्ट्रेटर अकील ताजिम नकवी ने एहलियान जमशेद टाउन को जिस तरह सफाई मुहिम के जरिए और मामूल के मुताबिक सफाई सुथराई के काम को जारी रखते हुए साफ सुथरा माहौल फराहम किया, वो यकीनन एक एहसन इक़दाम है। और आज जमशेद टाउन के खूबसूरत बागात और शाहराएं आज जमशेद टाउन को मॉडल टाउन में बरकरार रखी हुई हैं। और इन तमाम कामों के हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर जमशेद टाउन अकील ताजिम नकवी कहते हैं, जैसे ही हमने एज ए एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज लिया था उस वक्त हमने ऐद किया था और कुछ लोगों के आगे ऐद किया था कि अब हम आवाम के लिए जमशेद स्पेशली जमशेद टाउन की आवाम के लिए भरपूर काम करेंगे, भरपूर तवानाई के साथ काम करेंगे और किसी किस्म का एहसास नहीं होने देंगे उनको कि कोई चीज़ कम हो गई है, कि फ़ंड की कमी के बावजूद और जो गवर्नमेंट से हमें नहीं मिल रहा, इतना बड़े टाउन को चलाना जिसकी 13 यूसियाँ हैं, बहुत मुश्किल काम था। लेकिन आपने हमारे माथे पे शिकन नहीं देखी होगी। बताता चलूँ कि पोलियो के हवाले से जमशेद टाउन नंबर 1 है और मैंने अभी आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाए जिसमें 500-600 लेटर ऐसे दिखाए जो आवाम की तरफ से हमें मिले हैं, जो अप्रिसिएशन लेटर हमें मिले हुए हैं। इसी हवाले से हमने पार्कों के काम रुकने दिए हैं। हमने 3 पार्क तो आपने देखा कि अभी हाल ही के अंदर जो है उनका इफ्तिताह किया है। मज़ीद 3 पार्क जो हैं हमारे पाइपलाइन में हो, इंशाल्लाह करीब उनका इफ्तिताह होगा। इसी हवाले से आपको ये भी देखा होगा कि जमशेद टाउन बेसिकली एक सियासत के हवाले से, मज़हब के हवाले से एक अहमियत रखता है और एक गढ़ है। तो यहाँ पर मुहर्रम हो, रबीउल अव्वल हो या कोई सियासी प्रोग्राम हो तो ये जमशेद टाउन बुनियादी हैसियत रखता है। उसको भी हमने मेंटेन किया, संभाला, चलाया। और आपको याद होगा कि एक टेम्परेरी कैमरे लगाते थे रेंट के बेसिस पे, जो उनका वो नहीं होता था। लेकिन हम बड़े अरसे से ये सोच रहे थे कि कोई ऐसा परमानेंट सोल्यूशन इसका निकल आए कि वो मुस्तकिल जो है वो ये मसाइल जो है वो कंट्रोल में आ जाएं। तो मैं इसके लिए तहे दिल से रज़ा हारून भाई का शुक्रगुजार हूँ जो मिनिस्टर IT हैं कि अब जब हमने परेशानी देखा कि ये काम नहीं हो पा रहा तो हमने उनसे मदद की, तो उन्होंने हमारी मदद की। और अल्लाह का शुक्र है कि आज सिटी गवर्नमेंट के जो कैमरे हैं वही मेयार के कैमरे लग गए हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जमशेद टाउन वाहिद टाउन है जो हर महीने एक सफाई की मुहिम चलाता है स्पेशली, और टाउन वाहिद टाउन है जिसने सबसे पहले अपनी फेमिगेशन की मशीनें ली, जो 2 मशीनें हैं जो बेहतरीन मेयार की मशीनें हैं और वो मुस्तकिल जो है वो हमारे यहाँ टाउन में स्प्रे होता रहता है। और मेन जो जगह हैं इवन गवर्नर हाउस के अंदर भी और ये बलूचिस्तान हाउस में भी सब तमाम हक परस्त क़यादत का, एक्सपीरियंस क़यादत का, तमाम MNA MPA और मिनिस्टर्स का, तमाम सेक्टर्स का, तमाम यूनिट का शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से कि उन्होंने हमारी सरपरस्ती रखी है और रखी हुई है और हमें हर परेशानी से जो है बचा भी रहे हैं और हमें गाइड भी कर रहे हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची का भी शुक्रगुजार हूँ कि बहरहाल उन्होंने जो तावन हमसे कर सकते थे वो बहरहाल पोजीशन तो सिटी गवर्नमेंट की भी अच्छी नहीं है, लेकिन जो तावन वो हमसे कर सकते थे मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मैं म्युनिसिपल सर्विसेज के EDO मसूद आलम साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि मेरी दरख्वास्त पे वो फौरी एक्शन लेते हैं। और मैं इस हवाले से मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो हमें ख़त लिखते हैं और जो हमें लेटर लिखते हैं, हमें फ़ोन करते हैं। मैं अपने तमाम अमले का शुक्रगुजार हूँ, मैं अपने तमाम अफसरान का शुक्रगुजार हूँ, मैं अपने तमाम स्टाफ का शुक्रगुजार हूँ कि वो बड़ी मेहनत से दिन रात एक करके, ख़ास तौर से जो बरसात के अंदर जो उन्होंने मेहनतें की हैं, यकीन करें कि 3-3 दिन ये स्टाफ अमला जो है जागता रहा है। और ये पहला साल था कि महमूदाबाद जो पानी में डूब जाया करता था, मंजूर कॉलोनी जो पानी में डूब जाया करता था, शारा फैसल के अतराफ़ के इलाका जो पानी में डूब जाया करता था, वो इस दफ़ा जो है लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बड़ा रिलीफ मिला। इसमें भी ख़ास तौर से मैं वसीम अख्तर भाई का जो MNA हैं, रज़ा हारून भाई का जिन्होंने बड़ी दिलचस्पी ली और बड़े काम कराए, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद रखता हूँ कि इन सब की सरपरस्ती मुझे हासिल रहेगी।
ये प्यार